call is now being recorded. Good morning, everyone. In the last class, I started talking about the continuity of a function. So let's consider a few more formulas related to the same, some results, and few questions. So few results on the continuity of a function. Every constant function is continuous. Every polynomial function is again continuous. So that means every linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, and so on. So they all are continuous. Every rational function, px by qx, and obviously qx should not be a zero function. So that is always continuous. Then sin x is continuous, but of course in its defined domain, and here the domain is R. Similarly, the case for the cos x, continuous hota hai. Similarly, tan x is continuous, but tan x is continuous when sin x by cos x, because tan x is sin x by cos x, so tan x should be well defined. So cos x should not be 0. That means for every x which is not the odd multiple of pi by 2, the tan x is continuous. So you can easily visualize the graph of these functions which we did in class 11th, and if there is a continuity in a graphing of those, means if I can graph the function without lifting my pen, then the graph is a function of some continuous function. Now we'll talk about the algebra of continuous functions, which means if say f and g are two real functions which are continuous at a point A, which is a real number, then sum of two continuous function is always continuous at that particular point. Difference is also continuous, product is also continuous, and division, the quotient of two continuous function, is always continuous, obviously provided the gx as a function should not be a zero function. Consider a question based on it. Discuss the continuity of the following functions: sin x plus cos x, sin x minus cos x, sin x into cos x, and so on. So we already know sin x is continuous, cos x is continuous, and there is a simple result. If f and g are continuous, then their sum is also continuous. So this simply implies sin x plus cos x is continuous. Then we have a result, difference is continuous. Then we have a result, product of two continuous function is continuous. So that's only a one marker simple question in case if it comes. Check out next question. Discuss the continuity of cosine, cosecant, secant, and cotangent function. So just the basic idea is sin x, cos x are already continuous. Now cosecant x is 1 over sin x. So sin x should not be 0. So sin x should not be 0 means x should not be n pi, which simply means cosec function is continuous for all x not equal to n pi. Remember, it's only the basic idea of what you did in grade 11th. Similarly, we can talk about secant x. Now cos x should not be 0. X should not be the odd multiple of pi by 2. For the cot x, similarly sin x should not be 0. X should not be n pi, where n is of course belongs to z, integer domain. Now let us consider this question. Discuss the continuity of this function. fx define किया गया है as a piecewise function. Now the definition changes when x is less than 0. It has got different definition. For x greater than or equal to, it is a
simple x plus 1 as a polynomial function. तो we will use the basic idea, और वो क्या है? If the limit of a function is equal to value of the function, then we say f is continuous. That is, if the left hand limit, that's the formula for left hand limit at a, is equal to right hand limit, that way limit exists. And if this limit is equal to f of a finally, then we say our function is continuous. So this is our basic formula. Now how we are going to make use of it? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x, जब हम बात कर रहे हैं लेस देन 0, सो दैट इज लिमिट h to 0 f of 0 minus h. a minus h होता है फॉर्मूला, 0 minus h, which is limit h to 0 f of minus h. Now which function? x less than 0, ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा, और लिमिट h to 0, फंक्शन में x की जगह रख दिया माइनस h, एंड दिस इज लिमिट h to 0 साइन माइनस x इज माइनस साइन x, माइनस से माइनस कैंसल. आई एम श्योर आपको याद होगा ये सिंपल फॉर्मूला, limit x to 0 sin x by x is always equal to 1. So this is my left hand limit. अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की. सो वो फॉर्म रूल क्या बनेगा? लिमिट h to 0 f of a plus h, which simply means limit h to 0 f of h, or 0 plus h is referring to our function x plus 1, this one. So replace x by h only. This is limit h to 0, and when h is 0 के 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ चुका है. ऑल्सो रिमेंबर टू फाइंड the value of the function at that point. जो नीचे वाली डेफिनेशन से सीधा क्लियर था, 1 आ गया. What does that means? This imply f is continuous at x is equal to 0 also. Now why I'm saying 0 also? Because whenever x is less than 0, it is the quotient of two continuous functions. So it is already continuous. And when it is the x is positive, being a polynomial function again, it was continuous. So you can always mention that in the beginning, that for x less than 0 and x greater than 0, the function was already continuous. The possible point of discontinuity was x is equal to 0, where we had the break in the graph of this function, possibly. Therefore, we are just checking out, okay, is it a hole in the graph of this function? But since we are getting the left limit, right limit, and value of the function as same, so there is no break in the graph of this function, and hence this is a continuous function. So it is continuous on R. Final conclusion क्या कहेंगे? Therefore, f is continuous on R. रियल डोमेन के ऊपर ये कंटिन्यूअस हो गया है. In fact, if we consider the graphical visualization, which is of course not required in CBSE, क्योंकि आपको अलाउड नहीं है सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करना. I have probably used one software, GeoGebra है ये. So उसमें मैंने ग्राफ बनाया हुआ है. तो आप चेक करिए, साइन एक्स बाय एक्स का जब ग्राफ है, दैट इज शोन बाय द रेड कलर, एंड द वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 की लाइन है ये, और इस 0 के ऊपर वैल्यू सेम आ गई थी. सो व्हाट डज दैट, व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड,
ग्राफ मेरा ये चल रहा था लाइक दिस व्हेन x was negative and approaching to this point it became a straight line, but I can graph it without lifting my pen, hence this is a graph of a continuous function. So in examination definitely हम algebraic approach ही use कर रहे हैं, but the basic idea to understand कि graph के through भी हम इस चीज को actual में visualize कर सकते हैं. In fact there is a beautiful online software और ऐप भी अवेलेबल है. एक तो मैंने आपको बता ही दिया है जिसमें मैंने यहाँ काम किया है, that is actually GeoGebra. ये 3D ग्राफ बनाने के लिए 2D एंड 3D ग्राफ के लिए है. एंड द सेकंड सॉफ्टवेयर विच आई ऑलवेज प्रेफर इज डेस्मोस. और ये दोनों जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं ये डायरेक्ट आप वेबसाइट की तरह मतलब डायरेक्ट अपना ओमनी बॉक्स में डालिए, यू कैन यूज देम और यू कैन हैव देयर मोबाइल एप्स आल्सो. सो दोज हु वांट टू एक्सपेरिमेंट टू अबाउट द फंक्शंस they can always use them. One more question. Determine if f defined by this is continuous. So again, I'm not mentioning that, but ये obvious है. Whenever x not equal to 0 का मतलब क्या हुआ? Either x is positive or x is negative. In both the cases, definition यही है. ये आप अपने आप लिखकर दिखा देना. Whenever x is non-zero, ये वेल डिफाइंड हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये वेल डिफाइंड है एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज कंटिन्यूअस क्योंकि पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी कंटिन्यूअस है. तो फॉर x less than x not equal to 0, f is clearly continuous. ठीक है. सो ओनली पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया? ओनली पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज एक्चुअली 0 ओनली. तो अब हम 0 के ऊपर चेक करते हैं और याद रखिए क्योंकि whether x greater than 0 हो या less than 0 हो, I have the same definition. इसीलिए मुझे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है. आप सीधा बात करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन की. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस्ड इन क्लास 11th इटसेल्फ. ये आ गया. अब ध्यान से सोचिए ये क्या होगा. When x is approaching to 0, ये तो चलो 0 का स्क्वायर हुआ इनटू साइन 1/0 के बारे में हम क्या कहेंगे? 1/0, दिस इज बेसिकली टेकिंग अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, बट हमें पता है कुछ भी एंगल हो जाए, साइन इज एन ऑसिलेटिंग फंक्शन बिटवीन -1 to 1. सो दिस इज नथिंग बट एनी रियल नंबर जो आएगा बिटवीन -1 to 1. और इमेजिन अ सिचुएशन, एनी रियल नंबर बिटवीन -1 to 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बी ऑलवेज 0. ऑल्सो f ऑफ 0 वो आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ 0 के इक्वल. दैट इज हमने क्या नोटिस कर लिया? सिंपल चीज, limit of a function is equal to value of the function, so f हो गया continuous at 0 also. Therefore final conclusion, f is continuous on R real domain. कहीं भी कोई डाउट है तो you can always ask. Check out this question. Check this out. Find the values of k so that this function
this is continuous at the indicated point. So what does that mean? We have the indicated point as x is equal to पाई बाय 2. अब आपको ये ऑलरेडी गिवन है, ये देखिए f इज कंटिन्यूअस एट पाई बाय 2. तब k की वैल्यू निकालनी है. हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट? सिंस f इज कंटिन्यूअस एट पाई बाय 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाय डेफिनेशन लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन यूज करी. और जैसा मैं पहले बता चुका हूं, whenever x is less than not equal to पाई बाय 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? x ग्रेटर देन पाई बाय 2 हो या लेस देन पाई बाय 2, सेम डेफिनेशन है. तो यहां मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में नहीं जाना, आप डायरेक्ट यहां पर लिमिट निकालेंगे. कैसे? लिमिट x टू पाई बाय 2, फंक्शन एफ एक्स ये रहा, एंड द आंसर शुड बी f ऑफ पाई बाय 2, और वो मुझे 3 के इक्वल गिवन है. नाउ द क्वेश्चन गेट कन्वर्टेड इनटू योर ग्रेड 11th का सिंपल क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग आउट द लिमिट. तो हाउ वी फाइंड आउट द लिमिट? सोचिए जरा ध्यान से. लिमिट निकालने का मेथड, जब x अपोज टू पाई बाय 2 अब ऐसे में है, तो आप यहां क्या कर सकते हैं? पुट x माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू y. इसे देखकर, क्यों? क्योंकि अब ऐसे में क्या होगा? when x will approach to पाई बाय 2, clearly y will approach to 0. जब x पाई बाय 2 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, that will become 0. क्वेश्चन को मैं y की टर्म में चेंज कर देता हूं. तो क्वेश्चन क्या बन गया? लिमिट y टू 0, रिप्लेस x बाय x. कितना आ गया? बहुत ध्यान से देखिए, पाई बाय 2 प्लस वाई, एंड डिवाइडेड बाय पाई माइनस x की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस वाई रख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 3. नोट दिस स्टेप केयरफुली. Let's simplify this further. So this imply limit y to 0. Now, what is cos pi by 2 plus y? याद रखिए, दिस इज अ सेकेंड क्वाड्रेंट. पाई बाय 2 में कुछ ऐड हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, और कॉस है यहाँ, और आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है. कॉस विल चेंज इनटू साइन, बट कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव. तो ये माइनस और साइन वाई के इक्वल हो गया, और नीचे मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ये 2 कैंसल हुआ, एंड माइनस 2y. अब यहां देखिए, जो मैंने ये कंसेप्ट यूज करा है, ये क्लास 11th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, सो दैट मस्ट बी क्लियर टू यू. तो वो चीजें हम रिपीटेडली यूज कर रहे हैं और आगे भी होगा. सो फाइनली ये आ गया माइनस 2y, और माइनस से माइनस कैंसल, k बाय 2 बाहर, और ये बन गया डायरेक्ट फार्मूला which is equal to 1. So k by 2 into 1 is 3, giving you the final answer as 6. बोर्ड का ये 2 मार्कर क्वेश्चन है. चेक दिस आउट. Any step which is not clear, you can always ask.
So please revisit the method of evaluating the limits. क्लास 11 और 11 की अगर आप असाइनमेंट में से अगर प्रेफर कर लेते हैं, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, बिकॉज वेरी सून यू विल हैव द क्वेश्चन जिन्हें देखकर आपको रियलाइज होगा कि 11th में हम वो सारे लिमिट्स के एक्चुअल क्वेश्चन कर चुके हैं. Anyway, check out this question. Find k if this function is continuous at indicated point. आपको गिवन है f कंटिन्यूस है 5 के ऊपर. सिंपल क्वेश्चन है. सिंस f is continuous at 5, what does this mean? Limit of a function is equal to value of the function. But this time what happened? Whenever x is less than 5 अलग definition है, greater than 5 अलग definition है. So I have to use the idea of left and right hand limit. तो limit h to 0 f of a minus h, ये left hand limit हो गया. right hand limit f5 plus h हो गया, and ये आ गया f of 5. सो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी अब वो सोचिए जरा ध्यान से. फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट विच फंक्शन डेफिनेशन ये यूज होगा. सो दैट मीन्स लिमिट h to 0 फंक्शन में x की जगह लिख दो 5 minus h. दैट्स इट. इक्वल्स. अब 5 प्लस h है, 5 से ग्रेटर नीचे वाली डेफिनेशन यूज होगी. तो फंक्शन में x की जगह लिख दिया 5 प्लस h और ये एज इट इज, एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ 5. इक्वालिटी का साइन ऊपर था तो आप x की जगह 5 लिख देंगे. So that now when I solve it, h is 0, तो ये कितना आ गया एक्चुअली 5k plus 1. यहां h को 0 करा, ये आ गया 15 minus 5, और ये तो एक्चुअली 5k plus 1 के इक्वल था. दैट इज 5k is equal to 10 minus 1 और k आ गया 9/5. which is your required answer. So if you have a good enough practice, तो आप आंसर तो एक लाइन में सोच सकते हैं, इतना जरूरत लगता है कि है ही नहीं. बट 1 मार्कर में दैट इज ओके, बट फॉर अ 2 मार्कर क्वेश्चन यू नीड टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली द वे आई हैव डन. नहीं तो 1 मार्कर के हिसाब से आपको इजी वे बता देता हूं. ये x 5 है ना, यहां पर 5 रख दो, यहां 5 रख दो और दोनों को इक्वेट कर दो. तो x की जगह जब ऊपर 5 रखा 5k plus 1 और नीचे 5 रखा x की जगह, so that will directly give you the value of k. No problem in that. But why it is happening? It uses the basic fundamental definition of a limits. तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, then of course I need to explain the complete steps. Check out this question. Find a and b such that this function is a continuous function. अब स्पेसिफिक अगर डोमेन नहीं बताया तो इसका मतलब ये जहां जहां फंक्शन डिफाइंड करा गया है ये कंटिन्यूअस है. तो मेरा फंक्शन अगर आप ध्यान से देखें, इनसे देखकर क्लियर हो रहा है, क्लियरली गिवन, क्या गिवन है? f इज कंटिन्यूअस इन कहां से कहां तक?
2 से लेकर एक मिनट, x लेस देन 10 लेस देन 2। ओके, सो आपका कंटिन्यूअस तो ये रियल डोमेन में डिफाइन करा गया है। नंबर लाइन पे सोचिए, ये रहा 2, ये रहा 10, तो x लेस देन और इक्वल टू 2 पे भी फंक्शन डिफाइन है, 2 से 10 में भी डिफाइंड है, और 10 या ग्रेटर पे भी डिफाइंड है। इसका मतलब क्लियरली आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन R। अगर R पे कंटिन्यूअस है मीन्स f is continuous at the points 2 and 5, 2 and 10 also। जहां ब्रेक दिख रहा है मैं सिर्फ उन पे फोकस कर रहा हूं। अब हम 2 के ऊपर बात करते हैं। 2 के ऊपर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लेट मी फॉरगेट एवरीथिंग और फोकस करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया, when x is less than 2 और when x is greater than 2, तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मैं क्विकली कर देता हूं। लिमिट एज टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच, और 2 माइनस 2 से लेस ऊपर वाली डेफिनेशन है, आंसर फिक्स है 5, इट्स अ कांस्टेंट। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, f ऑफ 2 प्लस एच, 2 से ग्रेटर होने पर ये डेफिनेशन है, फंक्शन में x की जगह लिख देंगे 2 प्लस h, और ये कितना आ गया, when h approaches to 0 I am getting this as a finite value। ऐसे ही यहां what is the value of the function at 2, फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर 5 दी हुई है, therefore according to क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएंगी, विच विल गिव मी वन रिलेशन। ये और ये इक्वेट कर दिए, अब फर्दर देखिए, बात करते हैं 10 के ऊपर। बहुत इजी अब समझ आ चुका होगा, एट x इज इक्वल टू 10 भी हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट एज टू 0 f ऑफ a माइनस एच, 10 से लेस कहाँ है इस डेफिनेशन में, तो आप x की जगह 10 माइनस एच लिख देंगे, and this is when h approaches to 0। Next, right hand limit 10 plus h, 10 से ज्यादा के ऊपर आंसर फिक्स है 21, और फंक्शन की वैल्यू आपको क्या गिवन है 10 के ऊपर, दैट इज ऑल्सो 10। सो फाइनली क्या आ गया, ये और ये सेम हो गए, 10a plus b is equal to 21। We'll get our second equation. Now, using any method of class 9th or 10th, solving 1 and 2, I will get the values of a and b. Again, आप इस क्वेश्चन का अगर आंसर सिर्फ निकालना होता है एज अ 1 मार्कर, सिंगल स्टेप में आप आंसर दे सकते हैं। मतलब जो इक्वेशन 1 और 2 है आप लॉजिकली एक ही स्टेप में बता सकते हैं, एंड आई एम श्योर एवरीवन इज क्लियर अबाउट दैट। x को 2 रख दो यहां, तो x की जगह 2 रखा तो 2a प्लस b, और ये 2 के ऊपर आंसर यहां 5 था, आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे सेकेंड इक्वेशन के लिए 10 के ऊपर बात कर रहे हैं, x को 10 रख दिया, 10a प्लस b, और वो आंसर है 21 के इक्वल। सो गेटिंग द इक्वेशन इज नॉट अ बिग टास्क, रिमेंबर दैट। आप सब आराम से निकाल सकते हैं, बट अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन आए 2 नंबर का आया, तब आपको ये प्रॉपर डेफिनेशन से जो लिमिट्स का कंसेप्ट है वो ही करके दिखाना है।
Any doubt to anyone? You can always raise your hand, write in chat box, or unmute yourself. नेक्स्ट बात करेंगे हम कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस. कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एक्चुअली इट्स इन रिलेशन एंड फंक्शन, जो चैप्टर 1 में कंसेप्ट आता है, but you will be able to recall we already have discussed the same in grade 11. बेसिक आइडिया हम ले चुके हैं कॉम्पोजिशन का, तो वो मैं एग्जांपल से भी एक्सप्लेन भी कर देता हूं. वैसे पहले एक एग्जांपल देख लीजिए. जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स है 2x + 3 एंड से जी एक्स एक फंक्शन है x² - 5. तो देयर कंपोजिशन f of g हम क्या लिखते हैं? f of g at x, that is f of gx. और f of gx का मतलब f of gx कितना था? से x² - 5. और f की डेफिनेशन क्या है? जो भी लिखा है इनपुट उसका डबल कर दो और उसमें 3 ऐड करो. सो दैट इज द व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट एंड सिंपलीफाई, ये आ गया मेरा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. In syllabus we will be talking only about the compositions of the real functions. तो f from r to r है, g from r to r है, तो रियल वैल्यूड फंक्शंस यहाँ लिए हैं. तो अब आपके पास रिजल्ट आ जाता है कि अगर आपके पास फॉग डिफाइंड है, मतलब अगर f of g, f and g रियल वैल्यू फंक्शन है एंड f of g is defined as I have shown here, तो अगर आपके पास g कंटिन्यूअस है, f कंटिन्यूअस है, then their composition is also continuous at that particular point. Or in simple word, composition of two continuous functions is always continuous. Check out this question. Show that this function is continuous function. Cos of x². तो लॉजिकली सोचिए cos x² है, मैं एक फंक्शन x² ले लेता हूं और एक cos x. एक नया फंक्शन अगर मैं सोचूं h of gx, आप निकाल कर देख लीजिए. h of gx जो है आ रहा है cos of x². अब हमें पता है gx is a continuous function because it is a polynomial. hx cos x है, trigonometric function, this is continuous. And since their composition is must be also continuous, ये हम बता ही चुके हैं by rule, hence cos x² is continuous function. So in this case I don't need to go for left hand limit, right hand limit और उन सब में जाएं. ये प्लीज ध्यान से समझ लीजिए. इट इज बेस्ड ऑन द सिंपल कंसेप्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. तो डायरेक्ट आप इस तरह से आंसर दे रहे हैं. इट इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. सिमिलरली एफ एक्स है मॉड ऑफ cos x. मॉड cos x किन दो फंक्शन से बना है? cos x एंड mod x. अब ये एक्चुअल में क्या है? h of g. g of h अलग हो जाएगा, वो cos of mod x होगा. दैट यू कैन इजीली चेक. तो अब ये हमने h of g लिखा है, cos x कंटिन्यूअस, mod x कंटिन्यूअस. भानु स्टार्टिंग से ही हम कर रहे हैं. ऑफ कोर्स कंटिन्यूटी का मतलब if I can graph the function without lifting my pen, if there is no hole in the graph of the function, ये तो ग्राफिकल मेथड से हमने सोचा था. और एल्जेब्राइकली क्या देखा था? if the limit of a function
is equal to value of the function, then my function is continuous. तो अब gx कंटिन्यूस है. इमेजिन द ग्राफ ऑफ cos x. cos x का ग्राफ ये कंटिन्यूस ऐसे जाता है. इमेजिन द ग्राफ ऑफ mod x. ये तो इनका कंपोजिशन है mod ऑफ cos x. अब mod ऑफ cos x का ग्राफ आपको नहीं पता कि कैसे बना सकते हैं, वो चैलेंजिंग हो जाता है, बट वो बेसिक आइडिया ये कुछ जाएगा. ये ऐसा mod ऑफ cos x का ग्राफ आने वाला है. अब यहां पर ये पॉइंटेड एज हो जाती हैं, तो ये सॉफ्टवेयर से ही आप समझ सकते हैं, बट कंटिन्यूटी में आइडिया लग रहा है कि आई कैन ग्राफ दिस फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग माई पेन, हेंस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. I already have mentioned that software Desmos, आप कुछ उसके सिंटेक्स होते हैं, तो आप जब उनको समझेंगे ध्यान से और अगर आप ग्राफ बना के देखते हैं इन फंक्शंस का, you will have a better idea and understanding of this. Quickly check out this. Find all points of discontinuity. Think logically. mod x एक अलग फंक्शन लिया, mod x plus 1 अलग फंक्शन लिया. इनका डिफरेंस की बात कर दी एज fx. अब gx is a modulus function, it is continuous. hx is again a modulus function, it is continuous. Difference of two continuous function is always a continuous function. So final conclusion, there is no point of discontinuity. Check out this question. लास्ट करेंगे इस क्वेश्चन को. बहुत सिंपल है, बोर्ड में आया था 2-3 साल पहले. Find k if this function is continuous at 2. Whenever x is not equal to 2, सेम डेफिनेशन है. तो अगर f continuous है at x is equal to 2, then limit of a function should equal to value of the function, or when x is approaching to 2, function क्या दिया है इसके इक्वल, और f of 2 कितना बताया है k के इक्वल. अब ये लिमिट बहुत इजी है निकालना, 11th में कर चुके हैं. फैक्टराइज कर दो ऊपर. आई होप द आइडिया इज क्लियर. ये आ जाएगा फैक्टराइज करने के बाद. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये और ये कैंसल. व्हेन x अप्रोचेस टू 2, फाइनाइट वैल्यू आ गई, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर. And finally, mark this question for your homework. कुछ ज़्यादा बिल्कुल नहीं कहूँगा, बट ट्राई आउट दिस क्वेश्चन. और इसमें एक रूल सिर्फ याद दिलवा देता हूँ इजी क्वेश्चन को बनाने के लिए. अगर आप सोचें a sin x प्लस b cos x के एक्सप्रेशन को ईजियर फॉर्म में लाने के लिए हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसे रैशनलाइज कर देते हैं. 11th में किया हुआ है. So that is a basic hint for this question. You can use that. And we already have considered a similar question. अगर 1 के ऊपर आपको ये continuous दिया है function, you need to find the values of a and b. Very simple question. लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के ऊपर और इक्वल टू रख दो राइट हैंड लिमिट एट 1 और उसे मैच करवा दो वैल्यू ऑफ द फंक्शन से. चलिए बस ये 2 क्वेश्चंस ही हैं, बाकी कंप्लीट द एक्सरसाइज जितने हमने डिस्कस किया है.
Any doubt to anyone? Chali, you can leave the class. Thank you very much.